वो सब सुखी है। ऐसे सुखी आप सब बनाए, ऐसा हम भगवान की ओर से आशीर्वाद देते हुए हमारे वक्तव्य को विरमित करते हैं। जय स्वामीनारायण। धन्यवाद स्वामी जी आपके आशीर्वचनों के लिए। Awards, so many awards. I'm going to give few more awards for the toppers who have achieved in the board examination in the year 2014 and 15. I'm going to call out the 4 names who had secured 10 out of 10 in their academics, and I'm going to announce the first name who is going to come up on the stage is none other than Surya Abhinay. Surya Abhinay, who is going to come up on the stage. Well, Surya Abhinay, we can't see him around. Well, as he's going to come up on the stage. Meanwhile, I'm going to call out the other person whose name has already been named from our beloved Swamiji. And before this, to give away the mementos, I request our beloved Sriji Swamiji to come up on this stage, please. Sriji Charan Swamiji to come up on the stage so that we can start up with the award ceremony for the toppers. I request everyone, the audience, to clap for our Swamiji. And I request our Bade Swamiji also to come up on the stage as we are about to announce the toppers. And as I have already announced, Surya Abhinay, due to the examination, he is not around with us today. So I'm going to call out the next person, Niket Parekh, to come up on the stage, please. And about him, I'm going to call out few words, that he's the very disciplined boy and he's creative, self-dependent person and who doesn't require any teachers because he can be a teacher among himself itself. For which I'm going to call out Meet Patel on the stage. And he's going to receive his mementos now, and followed which I'm going to call out Meet Patel. He is a sincere student, adaptive in nature, gentle, and he is the best sportsman in our school. And he is the Usain Bolt of SMVP. He is the best runner and best athlete. And simultaneously, he is very good in studies. And he had received 10 out of 10 in the last academic year. Followed which we have Sai Dikshit. As Sai Dikshit is also having his examination, so he's not around. And out of these 4 boys, well, before I could announce something else, all the audience, can you see one bike which is in front of you? All the audience, if you could raise your hands and just let me know if you could see the bike here. Yes, I can't see more hands. I request everyone to raise their hands. Oh wow, everyone can see the bike. And Pro Honda Passion Pro. And we have one student out of this 4 students. One was Surya Abhinay, as he's not around. Though he had secured 10 out of 10. We have Niket Parekh, Meet Patel, Sai Dikshit. And one of the students is going to receive his award as Student of the Year. And I request everyone to clap while raising your hands up. While raising your hands up, I request Niket Parekh to come up on the stage and he's going to receive his award. And I request our Swamiji to hand over the key to Niket Parekh. And he's none other than our Student of the Year 2014 and 15. And he is receiving the key for the Passion Pro and the memento. And we wishes him that he will be doing good in his academics and in his careers also. And Niket, before you could leave, I would request our Swamijis so that they can take their seats.
and Niket is the next. स्वामी जी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए. And the student of the year, we would like to hear some words from him on this glorious day. ये पर्यावरण, ये मंच, ये वातावरण और आप सबका साथ, वाह! वैसे तो घर वापस आने का आनंद ही इतना है कि और कुछ कहने का रहा ही नहीं, लेकिन जब स्वामी जी ने यह अवसर दिया ही है तो आज आप सबके साथ मैं मेरे विचार बांटना चाहूंगा. जय स्वामी नारायण. I am Niket Parekh, a former student of this majestic and illustrious temple of knowledge. It was back in March 2008 that my parents, who are both doctors themselves, decided to look for greener pastures and so took up a job in Saudi Arabia. And that's where I spent quite a considerable part of my childhood, from 3rd to 9th. Then in 2013, life sent one of its most delightful curves to me. It was a great day when I decided that I wanted to study in a hostel. We saw a few of them and then came Gurukul on the list. This majestic building in the lap of exquisite nature, glittering with ecstatic atmosphere, was enough to convince me right away that this was where my search will end. And this has been one of the best decisions of my life. The tragedy of life is not death, but rather what we let die inside us while we live. What if Steve Jobs, who changed the world with his breathtaking devices, never even cared about innovation? What if Mahatma Gandhi, who studied in England, decided to stay there and never come back to India? Or Swami Vivekananda never enlightened millions with his spirituality? It was the burning desire of flames and passion in their heart that propelled them to greatness. Greatness is not a matter of choice, it is rather a matter of chance. Great people are never born, they make themselves great. And geniuses are not super talented people with very fat brains. Rather than 99% inspiration and 1% perspiration. And this is the sort of treasure I discovered here at my Gurukul. That each one of us is capable of changing the world. Each one of us has a sublime genius within us. And if we use them, we are just going to change the world. We all have infinite potential within us. All we need to do is open floodgates of enormous river of potential. We must be the change we want to see in the world. And if you get criticized on your way to greatness, don't worry, that's great. Because criticism is mediocrity's tribute to genius. To us, our path is unique, but together we are nothing more than fuel. Fuel that powers the elite who run the world. They give us things we like and we give them money. But what when we have polluted the last river left, poisoned the last breath of air? We humans are becoming a plague, sweeping the entire earth. We are tearing the world apart. But why? If you look deep inside, you will see happiness is the reason. यदि आप मुझे यह पूछे कि मैंने मेरे गुरुकुल के सफर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या सीखी, तो मेरा उत्तर होगा अध्यात्म. वो अध्यात्म जो भारतीय संस्कृति के हृदय में है. अरे सारा आनंद तो अध्यात्म में छुपा है, वो तो हम है कि बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं. यह अफवाह तो किसी और ने फैलाई थी कि अध्यात्म में कुछ रखा ही नहीं. मैं तो कहता हूं कि अध्यात्म के नींव के ऊपर खड़ी हुई जिंदगी की इमारतें ही परिपूर्ण है. If a man is to be called a street sweeper, he must sweep the streets as Michelangelo painted, or as Pele played football, or as Nelson Mandela fought racism. And why even go far? Our Swamiji is right here, an excellent paradigm of devotion to work and God. मुझे आज भी हमारे स्वामी जी की वो बात याद है जो उन्होंने हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर कही थी कि तुम जिंदगी में कितने भी आगे क्यों न चले जाओ, करोड़पति लखपति क्यों न बन जाओ या बिल्कुल कंगाल रह जाओ, लेकिन ईश्वर को कभी मत भूलना. अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उम्र और जिंदगी में इतना ही फर्क है कि जो गुरु के बिना बीती वो उम्र, जो गुरु के साथ बीती वो जिंदगी. थैंक यू एंड जय स्वामीनाथ. थैंक यू वेरी मच निकेत. अखिलेश हमारे मित्र हम सबके लिए एक मिसाल के रूप में खड़ा है.
जैसे हम सब सोने को मखमल डिब्बे में संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हमारे मित्र निकेत ने गुरुकुल के संस्कारों को अपने जीवन में संभाल कर रखा है. Well, Niket is an ardent example of Gurukul values. He will surely follow these values throughout his life. Well, now I remember a Chinese proverb which says, "It is better to light a candle than to curse the darkness." Here, most of the people say that our traditions are lost somewhere. But instead of saying that, why don't you give your child moral values at home? Everything will be set right. अजिंक्य, अभी बातें बहुत कर ली है. तुझे कुछ गाना वाना आता है तो सुना. हाँ तो चल, अब मैं तुझे गाना सुनाता हूँ. तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित. तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित. चाहता हूँ देश की धरती, चाहता हूँ देश की धरती. तुझे कुछ और भी दूं और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं और भी दूं. अजिंक्य, गाने के लिए कहा तो देशभक्ति के गीत ही क्यों गा रहे हो? असलेश, और कंट्री इज ग्रेट आउट एंड आउट. अरे इसमें क्या सके, अभी तुझे क्या हुआ? नथिंग. इंडिया एंड इट्स ग्लोरी can't be just sung in 2 lines. India had a great glorious past. India was under British control once upon a time, and after 300 years and above, it has become free. पता है, पहली आजादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, पर यह सफल नहीं हो सकी. उसके बाद लगातार 90 साल तक हमारे देशभक्त आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और अंत में हमें आजादी मिली. हर भारतीय अपने देश और संस्कृति के लिए कभी पीछे नहीं हटता. इस ताकत का अंदाजा भारत के सभी दुश्मनों को था. इसलिए सिकंदर ने भी कहा था कि जंग में उतर जाने के बाद भारतीयों को उतना ही मुश्किल है जितना कि शेर के मुंह में से हाथ निकालना. मोहम्मद गोरी ने भी कहा था कि भारतीय से अगर कोई भी चीज लेनी हो तो मांग कर लो, छीनने से नामो निशान मिट जाता है. मुगल अकबर भी कहता था, अगर भारतीयों से जीतना है तो उनके साथ दोस्ती कर लो, लड़ने से नामो निशान मिट जाएंगे. और अंग्रेज ने भी कहा था, अगर भारतीयों से जीतना है तो उनको आपस में लड़वा दो. अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको भारतीयों का ताकत और कमजोरियों का ख्याल आ गया होगा. इसी कारण हम हारते और जीतते चले आए. तो चलिए अब हम हमारे महान स्वतंत्र संग्रामियों को याद करें और उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए इस नाटक को देखते हैं. इस नाटक में एक तरफ यह दिखाया गया है कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ यह भी दिखाता है कि हम आजादी मिलने के बाद क्या किए. तो चलिए देखते हैं हमारी मजबूती और कमजोरी. दिस ड्रामा विल बी प्रेजेंटेड बाय जय हिंद स्पैंटर्स. थैंक यू. ये कहानी है भारत के स्वातंत्र की. हमारा पहला क्रांतिवीर मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, रेजिमेंट 34. मंगल 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 मंगल. सर सुनाई नहीं राइफल आई है नए कारतूस के साथ. इसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है. जागे न कर सारे, जागे न कर सारे, जागा है पुराने जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों की शान. सर इस कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है. गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सूअर मुसलमानों के लिए हराम. इसे हम छू नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. आप ऐसी लगी है दिलों में, ना पूछे किसी के बुझाए. अपनी अपनी है आंखों से चलती, सब नहीं झुकते हैं झुकाए. हम तो बिगड़े हैं केवल मदीने, निकले तो अपनी को जगा. वो तो आदि के जैसे मुझे राजा बन गए किसी के नवा. आई सौगंध है ये प्रवीणे, अब गुलामी को देंगे विचार. बल्ला
1928 भगत सिंह साइमन गोमेज 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 लाला जी की मौत का बदला हम लेंगे स्कॉट की हत्या करनी होगी पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल असेंबली में बाउंड छोड़ेंगे वो जाएगा वापस नहीं आएगा अपनी गिरफ्तारी छोड़ देगा इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद के रास्ते से ही स्वातंत्र मिलेगा पहली लाठी पकड़ चलते शान से स्वाधीनता पे कर सुनकर उनका नाम उनका छोटा सा और बचपन की चाल रे पतले से थे वो चलते सीना तान चुकानी पड़ी अपने देश को आजादी दिलाने की। अजिंक्य, अब इसके विषय क्या कहना चाहता हूँ? अखिलेश, मुझे इस विषय में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब हम उन्हें सुनने जाने वाले हैं जिनके साथ हम सदा मित्र की तरह रहते हैं और सदा मित्र के भाषा में भी आनंद करते हैं। एक अजीब सी बंदिश है संतों के संग में, ना उन्होंने कभी कैद में रखा, ना हम कभी फरार हो पाए। तो ऐसे हरिदर्शन दास जी स्वामी जी से मैं आग्रह करता हूं कि स्वामी जी आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। जय स्वामीनारायण। भगवान श्री हरि की दिव्य निश्रा में विराजमान पूज्य संतों के पावन चरणों में वंदन एवं यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को मेरा जय स्वामीनारायण। जब मैं पीछे काम कर रहा था
तो मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि मैं आज आपको जीवन के बारे में 2-4 सवाल पूछूं और उसका जो जवाब मिले उस पर 2-4 मिनट चर्चा करूं। लेकिन हमारे दोनों ड्रामे के ड्रामेबाजों ने मेरा मन अपने अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, इसलिए यह सवाल पूछने का विचार भी पीछे छूट गया। ये विद्यार्थियों ने ये ड्रामा रजू करके ये आजादी का मूल्य क्या है ये समझाने का प्रयास किया है। ज्यादातर मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन पात्रों की रजूआत स्टेज पर होती है, पर ये शहीदों की सूची में कई पात्र ऐसे भी है कि जिनके नाम हम आज भी नहीं जानते। नाम नहीं जानते इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके ऋणी नहीं है। एक एक की कुर्बानी बधाई देने योग्य है। बच्चे, बूढ़े, युवान, कोई भी, स्त्री, पुरुष, सबका सहयोग है। केवल जलियांवाले बाग की एक घटना को आप याद करो तो अभी भी वहां इंकलाब के नारों की भनक सुनाई देती है। ये जलियांवाला बाग याद आया तो मुझे वो गीत की पंक्तियों का भी स्मरण हो रहा है। क्या? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ये एक एक जगह पर एक साथ हजारों लोगों की कत्लेआम हो गई और फिर आजादी प्राप्त हुई। मतलब इतना ही है कि सबका समर्पण, लेकिन वो भी साहस के साथ। मंगल पांडे ने भी अंग्रेजों को कह दिया कि इस कारतूस पर चर्बी लगी हुई है और हम हिंदू मांस को मुंह नहीं लगाते। भगत सिंह ने कह दिया कि असेंबली में बम फेंक कर हम वहीं रह जाएंगे। इसके बाद निडर आजाद ने अंग्रेजों को भी कह दिया कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। मानो ये सबकी शहीदी हमें कोई संदेश दे रही हो कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसमें हमारा देश के प्रति कर्तव्य क्या है, यह एक सुझाव लेने योग्य है। और जो दूसरा ड्रामा था सुख की खोज, उसमें तो ज्ञान की सीमा क्या है, जीवन का हेतु क्या है, ये सब छोटे छोटे वामनों ने व्यास के रूप में रजूआत की। मैं मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह बात समझना सबके लिए सरल नहीं है, लेकिन मैं इंसान हूं यह समझना कहां कठिन है, सरल है ना। बस इतना यदि प्रामाणिकता के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो भी जब तक धरती पर है खुद भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, औरों को भी करा सकते हैं। यह नीलकंठ विद्यापीठ की सबसे पहली विशिष्टता यह है कि यहां इंसान